I told you that when we are talking about economics means country में कहाँ पैसा आता है, कहाँ खर्च होता है, what are the ways a country का basic, जैसे आपके पापा he might be in job or some business, right? Either he would be in job or he would be doing some business. यानी कि in your family your income is from your father who is a businessman or serviceman. So what kind of expenses you have, what is the kind of people in your family, तो हम लोग जो है इकोनॉमिक्स को उसमें लेकर आते हैं when it comes to the national development. We started off with the chapter story of Palampur and उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा that in Palampur maximum people are engaged in agriculture, right? And then we also studied that what are the main factors of production, that is land, labor, physical capital and human capital. ये हमने पढ़ा. फिर हम लोगों ने लैंड के बारे में पढ़ा that land is fixed in Palampur. So they use multiple cropping and modern farming so that they can enhance more production. मतलब उसी land से ज़्यादा production मिल जाए. Then secondly, we also studied कि land जो है even though it is we are using multiple cropping, वहाँ पे 4 अलग अलग तरीके के 4 different varieties of crops are grown, sugar cane, bajra, potatoes and wheat, but it also degrades the land. Today we will be starting with how the land is distributed. Now what is the meaning of that distribution beta? Means होता क्या है कि जो land है, we know that there are 450 families living in Palampur. 450 families, not 450 people. But not everyone is owning the land. Not everyone is working in another land. Secondly, अब आपका you are living in Dilshad Colony, I know, right? And you are having, I think you are living in an apartment. You are living in a flat. Some people have small flat. Some people have bigger flat. Some people have medium flat. तो हाउ डू वी, किसको हम बोलते हैं? आपने दिलशाद गार्डन में सुना होगा LIG, MIG, HIG. You must have heard. Have you ever heard about it? LIG, MIG. Yes, ma'am. हाँ, तो LIG means मतलब according to government, it is only one room is there. Whereas in MIG 2 bedrooms are there. In HIG there are 3 bedrooms. And what does it mean? जो जिनकी इनकम, जिनकी मतलब की अफोर्डेबिलिटी 1 रूम की है, दे गो फॉर. तो उसी तरीके से जो लैंड इन पालमपुर है, it is also divided into some people are having less than 2 hectares, some people are having more than 2 hectares. तो कैसे हमारा डिवाइड हुआ है? You must have realized how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. As I said, सबके पास land नहीं है. In Palampur, 450 families में से 150 families are Dalits. Dalit का मतलब होता है दल-इत. The people who are sidelined, जिनको अलग कर दिया जाता है और उनके पास कोई लैंड नहीं होता है, यानी कि वो लोग दूसरों के खेतों में एज लेबर्स, एज फार्मर्स दे वर्क. ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन द लैंड 240, यानी कि 450 में से 150 चले गए, 300 पीपल. ठीक है, 300 में से 240 cultivate small plots of land that is less than 2 hectares. यानी कि maximum people are having land less than 2 hectares. और 2 hectares बेटा
इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट बहुत कम होता है. Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer's family. और जो 60 लोग बच गए हैं, 450 लोग थे, उसमें से 150 ऐसे हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं है. 450 minus 150 is 300. 300 में से 240 people, 240 families are having less than 2 hectares. And around 60 families of medium large farmers who cultivate more than 2 hectares. And बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है, मतलब whom we can call rich farmers. So this is हमारे यहाँ पर in maximum in the rural areas, few people have more land and less people have, मतलब more people are working in other lands. जो रिच एंड पुअर के बीच में जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. यानी कि जिन लोगों के पास कम, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो बहुत कम लैंड है या लैंड है तो या है ही नहीं. Who will provide the labor? पहला हमारा था लैंड. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेटा. द फर्स्ट प्रोडक्शन इज लैंड. तो हमने लैंड में देखा कि लैंड इज फिक्स्ड एंड दे यूज मल्टीपल एंड मॉडर्न फार्मिंग, एंड लैंड इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ द सेकेंड फैक्टर दैट इज लेबर. अब आपने यू आर लिविंग इन दिलशाद कॉलोनी, यू मस्ट हैव सीन in the morning while you are going to the school, जो आपका सुरक्षा नर्सिंग होम है उसके आगे you might have seen a number of laborers sitting in the morning. Have you ever noticed? Your bus also comes there only. Have you ever noticed? Yes, Sanvi? This means India के अंदर overall, I'm not talking about once Palampur, I'm talking about overall India. The labor, हमारे यहाँ लेबर्स बहुत ज्यादा है. अब एक इकोनॉमिक्स में there is a theory which we call as demand and supply. डिमांड मतलब किसी भी चीज की अगर ज्यादा डिमांड हो और सप्लाई कम होगी, मतलब मान लो हमें टमाटर खाने हैं, वी वांट टू ईट टोमेटोज. टोमेटोज का डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसकी जो कीमत होती है ना वो ज्यादा हो जाती है, बिकॉज इट इज स्केर्स. वेयरएज अगर डिमांड आपकी कम है एंड बहुत ज्यादा सप्लाई है, टमाटर भरे हुए हैं, तो दुकान वाले क्या करेंगे, उसे सस्ते से सस्ते दाम में बेचेंगे. एंड दिस इज ऑल फॉर लेबर ऑल्सो. हमारे यहाँ लेबर ज्यादा है एंड काम कम है. एम्प्लॉयमेंट इज लेस एंड लेबर्स आर मोर, एंड दैट इज वाई उनके जो वेजेस होते हैं, यानी कि उनकी जो सैलरी होती है, हम लोग जो लेबर्स को देते हैं उसको हम वेजेस बोलते हैं. That is also less. That is less, that becomes less. And the same thing is there in Palampur also. पालमपुर में आपके लेबर ज्यादा है एंड आपके इसी वजह से क्या है, द वेजेस, इवन दो गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड समथिंग एल्स, लेकिन वहां लोग 30 रुपए 40 रुपए जो मिलता है उसमें वो काम करते हैं. आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. Small farmers along with their families cultivate. उनको तो चाहिए नहीं होता. Thus they provide the labor for farming themselves. Now the people who are medium, जिनके 2 hectares से ज्यादा या फिर 10 hectares से ज्यादा हैं, they hire the farm laborers to work on their field. These farm laborers come either from landless families,
जिनके पास बिल्कुल नहीं है, वो जो 150 दलित फैमिलीज, या जिनके पास बहुत छोटे छोटे लैंड है. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the land. वो तो सिर्फ काम करते हैं, उन्हें पैसा मिलता है. They are paid wages. Wages can be in cash or in kind. Cash मतलब आपने काम किया, उनको पैसा मिल गया. लेकिन कभी कभी दे मे नॉट बी गेटिंग द मनी, इंस्टेड दे मे गेट समथिंग एल्स. उनको क्रॉप मिल जाएगा. ठीक है, आज आपने काम किया, आपको 1 किलो गेहूं मिल गया, उसको हम बोलते हैं काइंड. कैश होता है मनी. वेजेस वैरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर. मतलब अगर आप यू गो टू पंजाब एंड हरियाणा, वहां वेजेस ज्यादा हैं, बिहार में कम है. इफ यू सी क्रॉप्स, पल्सेस, व्हीट, राइस, इनमें ज्यादा दिए जाते हैं. देन जब सो करते हैं, यानी कि बीज को बोते हैं, तो ज्यादा मिलता, हार्वेस्टिंग में कम मिलता है. देन देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इसको हम बोलते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट. बिकॉज आप सारा दिन खेत में काम नहीं करते हो. व्हेन अभी जैसे इट इज मई मंथ है, ठीक है, मई और जून में खूब धूप रहेगी. एंड व्हेन द मॉनसून कम्स, तो ऑल द फार्मर्स, अभी इस वक्त में वो लोग अपने जो मतलब मिट्टी है उसको तैयार करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, उसको खोदेंगे, उसको तैयार करेंगे. उसके बाद जब बारिश आने वाली होगी, फर्टिलाइजर. यस, दे वुड बी रेड. उसके बाद दे वुड बी सोइंग द सीड्स. एंड फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर कुछ नहीं काम होगा. कभी कभी पानी दे दिया, कभी कभी मतलब कि उसमें खाद डाल दिया. लेटर ऑन व्हेन द क्रॉप्स ग्रो, उनकी कटिंग का सीजन आता, तब द लेबर्स की जरूरत होती है. सो मोस्ट ऑफ द लेबर्स क्या करते हैं बेचारे, मतलब उनके पास कोई काम नहीं होता, तो दे माइग्रेट टू द सिटीज. हमारे यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर मैक्सिमम रिक्शा पुलर्स, कैजुअल लेबर्स, ये लोग वो होते हैं जो लोग जब मतलब कि इनके ये लोग वहां काम करते हैं, जब कटाई होती है तो ये लोग वापस चले जाते हैं, और जब कोई काम नहीं होता है तो दे हैव टू माइग्रेट बिकॉज दे डोंट हैव इनकम. आई यूज टू हैव वन परमानेंट रिक्शा वाला, तो ही यूज टू टेल मी, मुझे भी उस मतलब कि उसने ही बताया था, फॉर मेनी 3 or 4 months ही wasn't there. तो वंस आई आस्क्ड कि भाई सुरेश भैया आप थे नहीं, तो ही सेड कि मेरी मतलब वहां पर जो है आई एम अ फार्म लेबर, तो अभी कटाई का सीजन था तो आई हैड गॉन ओवर देयर. बट कटाई नहीं होती है तो दे कम हियर, दे बिकम रिक्शा पुलर्स, दे बिकम स्मॉल टाइम कैजुअल लेबर्स. ये पेपर में आपके क्वेश्चन भी है. एंड yesterday when I had shared the question answers, उसमें भी है कि why do people migrate? This is the answer. Because they don't get income. Dala is a landless farm laborer who works on daily wages in Palampur. Daily wages मतलब आज काम किया, आज पैसा मिल गया. It's not a regular work. रेगुलर होता है जो हम लोग करते हैं, पूरे मंथ काम करते हैं, then we earn. This means he must regularly look for work. The minimum wage, this is now changed. मेरे वाले इसमें in my but now it is changed according to the new syllabus. It is something else that I'll share with you. But Dala gets only 80 rupees. मतलब 115 rupees गवर्नमेंट ने फिक्स किया है. एक दिन की जो तनख्वाह है that should be 115, but they get only 80 rupees. 80 छोड़ दो, sometimes they may be getting even 40 or 50 rupees. There is, why? Because काम कम है, the employment is less and labors are more. There is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur. So people agree to work for lower wages. Dala complains about his situation to Ramkali, who is also a farm laborer. They are the poorest people. So that means first हमारा फैक्टर था लैंड इन पालमपुर, सेकेंड इज लेबर. यानी कि इससे हमें ये पता लगता है कि लेबर्स हमारे यहाँ ज्यादा है, द डिमांड इज लेस, सो दैट इज व्हाई द लेबर्स आर एक्सप्लॉइटेड, दे डोंट गेट प्रॉपर
सैलरी, वेजेस, रेगुलर इनकम। और उसकी वजह से क्या करना पड़ता है, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई डू पीपल माइग्रेट? दिस इज बिकॉज व्हेन दे डोंट गेट द वर्क they have to go somewhere else. As I told you the real incident of one of the rickshaw pullers in Rampuri. So it happens. The next is third, physical capital. Now हमने फिजिकल कैपिटल को बच्चा डिवाइड किया था इनटू टू। एक हमें चाहिए होता फिक्स्ड कैपिटल। As I said, if you want to start your business, you will need a house, you will need a shop, you will need a factory, you will need some furniture, you will need some computers or machines. उनको हम फिक्स्ड बोलते हैं। एंड देन आपको जो रोजमर्रा के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, या फिर आप अपने लेबर्स को सैलरी दे रहे हो, या यू आर पेइंग फॉर द इंश्योरेंस फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। और फार्मर्स को दोनों की जरूरत पड़ती है। तो हाउ डू दे अरेंज? और ये दिस क्वेश्चन आई मतलब कि कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसने ये क्वेश्चन अपने पेपर में ना दिया हो। हाउ डू द फार्मर्स अरेंज द कैपिटल? मतलब देन यू हैव टू डिफाइन how do the small farmers arrange and how do the medium and large farmers arrange. This is a back question also of your book. This is there. This is there. How do the medium and large farmers obtain capital for farming? How is it different from small farmers? मतलब आपको ये बताना है कि तीनों जो हमारे मतलब अब स्मॉल फार्मर्स कौन है? दोज हु आर हैविंग लेस देन 2 hectares, 2 to 10, medium and more than 10, large. So how do they get the money? स्मॉल फार्मर्स के पास तो कुछ नहीं होता, जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं, व्हाट डू दे डू इज, उनके पास सेविंग्स नहीं होती हैं। व्हाट डू दे डू इज, when they require money for buying the seeds, fertilizers, insecticides, they go and get the loans from money lenders, ये आप 10th में पढ़ोगे, and from the large farmers on high rate of interest. आप लोग अपने मैथ्स में कैलकुलेट करते हो, अगर उन्होंने 100 रुपए लिए हैं तो दे हैव टू गिव बैक 110 रुपीज, विच इज वेरी हाई, क्योंकि बैंक हमसे लेती है सिर्फ 2 रुपीज, 3 रुपीज, सो दे हैव टू टेक अप। वेयरएज जो मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स होते हैं, द रिच फार्मर्स, उनके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। वो क्या करते हैं, जितना उनको चाहिए, लाइक दे हैव प्रोड्यूस्ड वीट, उन्होंने वीट प्रोड्यूस किया तो वो अपने घर के लिए रख लेते हैं, एंड जो सरप्लस होता है दैट दे सेल इन द नियर बाय मार्केट्स। फिर उससे जो उनको प्रॉफिट मिलता है उसको वो लोग बैंक में रखते हैं, स्मॉल फार्मर्स को कर्जा देते हैं, या फिर दे मे बी बाइंग द मशीन्स, द टूल्स, द ट्रैक्टर्स। इस तरीके से वो लोग जो है अपने सेविंग से काम करते हैं। Whereas the small farmers have to borrow the money, and sometimes when they are not able to return back the money, they fall into debt trap. They fall into debt trap. So now what is the meaning of debt trap? Debt trap का मतलब होता है बेटा कर्जे का ट्रैप। कर्जे का ट्रैप, ट्रैप का मतलब नेट, जाला, वो फंस जाते। वाई? जब उनको कर्जा लेना होता है तो दे हैव टू मॉर्टगेज समथिंग। मॉर्टगेज मतलब अपनी किसी चीज को गिरवी रखनी पड़ती है, एंड व्हेन दे आर नॉट एबल टू गिव बैक द मनी, तो वो जो चीज उन्होंने गिरवी रखी होती है वो दोबारा। हाँ बेटा,
या they have to sell it or they या just can take it back. they have to sell it, or sometimes what will happen is वो लोन के ऊपर लोन ले लेते हैं, and when they are not able to pay they fall into the debt trap. Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers and or the village money lenders or traders who supply them the money. द मतलब जो लोग उनके वो होते हैं वहां से लेते हैं, जो उनको सीड्स फर्टिलाइजर्स देते हैं, उनसे क्रेडिट पर लेते हैं कर्जे में. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई. इनको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, यानी कि दे फॉल इनटू द डेट ट्रैप. Savita is a small farmer. She plans to cultivate wheat on her 1 hectare. She needs seeds, fertilizers, pesticides. She needs money for water, repairing the instrument. और उसको 3,000 minimum चाहिए. So she decides to borrow from Tejpal, who is a big farmer. वो पैसा तो दे देता लेकिन 24% for 4 months. Imagine 24%. which is a very high interest rate. अब उस बेचारी को वापस भी देना पड़ता है, प्लस शी ऑल्सो वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट 35 रुपीज. गवर्नमेंट ने कितना फिक्स किया है? 115 रुपीज, एंड फॉर व्हाट शी इज वर्किंग 35. उसको अपनी भी फील्ड को करना पड़ता है. देन शी हैज टू वर्क ऑन तेजपाल सिंग्स ऑल्सो. Then she has to fulfill her household responsibility also. So this means the small farmers को पैसों की बहुत दिक्कत होती है. In contrast to the small farmers, medium and large farmers have their own savings. They are thus able to arrange for the capital. How? मैंने आपको बताया. Among the 3 factors labor, ये तो हमारा question है. Sorry, this is a question. The farmers have produced wheat, मतलब ये हम assume कर रहे हैं on the wheat is harvested, कटाई हो गई, production complete हो गया. They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus. Small farmers like Savita and Gobind San have little surplus, क्योंकि उनका तो छोटा सा खेत है. So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. मतलब बुलक कार्ट में अलग अलग. द ट्रेडर्स बाय देम एंड सेल टू द शॉपकीपर्स, जो हमारे पास आते हैं. तेजपाल द लार्ज फार्मर हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, और वो रायगंज में बेचता है, एंड ही गेट्स अर्निंग. सो व्हाट डज ही डू? ही पुट्स द मनी इन हिज बैंक अकाउंट. Later he used the money for lending to farmers on high rate of interest. He also uses that money for his next farming season. Yeah. Now he is planning to buy another tractor. That means he is increasing his fixed capital. यानी कि जो रिच होते हैं, जो आपके मीडियम होते हैं, उनको पैसों की दिक्कत नहीं होती. Like Tejpal, other large and medium farmers also sell the products from. A part is saved, kept for buying capital. Thus, they are able to arrange for their capital for farming. Some farmers might also use the savings to buy cattle, truck or set up shops. यानी कि वो लोग अपने fixed income के लिए use करते हैं. Thus, हम देख सकते हैं that ये question मैंने आपको भी बताया that this question comes, question number 10 of your back exercise, that how do the small farmers arrange for the money and how it is different from large and medium. तो जो large and medium farmers हैं, they are having extra income, they are having savings. So when they are selling the surplus in the market, they get the profit. With that profit they put it in the bank. बैंक में उनको इंटरेस्ट मिलता है. They give it on
लोन टू अदर फार्मर्स, उससे उनको इंटरेस्ट मिलता है, एंड देन जो सरप्लस होता है उसको रखकर वो अपने अगले फार्मिंग सीजन के लिए सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सब खरीदते हैं। और कभी कभी इफ दे रिक्वायर दे मे इवन बाय बिगर थिंग्स लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन। यानी हम मतलब कि दोज हु आर रिच, दोज हु आर मीडियम, दे आर एबल टू सस्टेन। आपने देखा होगा इन अभी लास्ट ईयर देयर वाज अ लॉन्ग स्ट्राइक ऑफ द फार्मर्स। पूरा का पूरा आपका एनसीआर, गुड़गांव, they were there on strike. Why they were on strike? You must have seen there are many people, बहुत सारे ऐसे न्यूज आते हैं, अगर आप न्यूज को देखोगे तो यू विल सी द फार्मर्स हैड कमिटेड सुसाइड। उन्होंने सुसाइड Yes, अटेम्प्ट ma'am. किया। I've व्हाई? heard of it. यस, Ma'am, बिकॉज because they are not able to pay the loan and they go into depression. yes, because they are not able to fulfill their needs, they are not able to pay the loans। और इसके लिए क्या होना चाहिए, मतलब why we are talking about here about this is the government should give them loans on cheaper interest। yes, हमारे यहाँ पर ग्रामीण बैंक है, हमारे यहाँ पर NABARD है, but not all the farmers get the loans from there। So the government, the people who are involved, उनको देखना चाहिए कि जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं दे आर ऑल्सो गिवन प्रॉपर इंसेंटिव्स। होता क्या बच्चा, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू द शॉपकीपर। ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं इन अवर लैंग्वेज मिडलमैन। तो ये जो मिडलमैन होते हैं ये लोग क्या करते हैं, मतलब यानी कि अगर मेरा खेत है तो मैंने तो बो दिया, अब मैं डायरेक्टली तो जाके ना ही मैं मार्केट में बेचूंगी और ना ही मैं डायरेक्टली जाकर जो है आई एम गोइंग टू सेल इट टू द पीपल। तो क्या कौन खरीदता है? तो नाउ देयर आर मिडलमैन। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमारे पास आते हैं या हम उनके पास जाते हैं, दे बाय द प्रोडक्ट एंड देन ऑन अ हायर प्रॉफिट दे सेल इट टू द, जैसे गेहूं है तो वो आटा बनता है, तो दे सेल इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बाद में आपके रिटेलर्स वगैरह को सेल आउट करते हैं। कुछ जगहों पे क्या होता है, द गवर्नमेंट बाइज द प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाइज द प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्मर्स और फिर उसको हम बोलते हैं MSP। मतलब एक मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है, गवर्नमेंट पहले ही फिक्स कर देती है। द गवर्नमेंट पहले ही फिक्स कर देती कि दिस ईयर वी विल बी बाइंग द व्हीट एट दिस प्राइस, राइस एट दिस प्राइस, पल्सेस एट दिस प्राइस, और वो आपको पता है वो बहुत ही कम होता है। अब फार्मर्स डायरेक्टली तो गवर्नमेंट को बेचते नहीं है, दे सेल टू द ट्रेडर्स, उसका फायदा ट्रेडर्स उठाते हैं। और इसी वजह से पीछे जो आपका स्ट्राइक हुआ था, देयर वाज अ लॉन्ग स्ट्राइक फॉर 1.5 years, दैट वाज देयर बिकॉज जो हमारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं दे डोंट गेट द बेनिफिट्स, दे वर्क मतलब कि सो मच, इतने हार्ड वर्क करते हैं बट दे डोंट गेट। सो दिस इज हाउ दे आर फोर्स्ड टू सेल आउट देयर। कई बार क्या होता है, उन्हें अपना सब कुछ बेचकर गांव से शहर आ जाना पड़ता है। हेयर दे वर्क एज लेबर्स, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते, दे आर नॉट दैट मच लिटरेट, सो दे हैव टू वर्क इन द लोअर कैटेगरी। नाउ अब हमने पढ़ा लैंड, लेबर, कैपिटल। तो और फर्स्ट में हमने पढ़ा दैट द मेन वहां पर जो एक्शन है, जो एक्टिविटी है वो है फार्मिंग, बट दैट इज ओनली मेन। तो बाकी और भी कुछ करते हैं पीपल,
Yes, this is a 5-marker question. This is a 5-marker question. What are the non-farming activities in Palampur? पालमपुर में अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग और कौन कौन से एक्टिविटीज वो करते हैं. सो दे हैव, अब देखो, नॉट ऑल द टाइम दे आर इनटू द हार्वेस्टिंग. हमेशा तो कटाई नहीं होती है और हमेशा ही आपकी सोइंग भी नहीं होती है. सो सम ऑफ देम हैव कैटल. उन्होंने भैंस बकरी वगैरह पाल रखी है. हमने पढ़ा था कि वहां पर बाजरा और जोवर लगता है. So they use that, they feed the cattle, और कैटल से जो दूध मिलता है उसको वो आसपास के गांव में जाकर बेचते हैं. छोटी छोटी मशीनें हैं, उसमें डेयरी फार्मिंग कर रखा, दूध की दही, चीज मतलब पनीर वगैरह बनाते हैं, उसे बेचते हैं. सम ऑफ द पीपल, उन्होंने अपने घर के आगे ही छोटा सा तंबू सा लगा रखा है, वहां समोसे हो गए, ग्रोसरी शॉप हो गई, जो डेली यूज के आपके कपड़े, डेली यूज के जो सामान है वो बेचते हैं. सम ऑफ द पीपल आर बिट इंटेलिजेंट. उन्होंने कंप्यूटर सेंटर्स बना रखे हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा था दैट इन पालमपुर देर आर कॉलेज, देर आर सम स्कूल्स ऑल्सो. तो जो बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वहां पर कंप्यूटर सीखते हैं, उससे उनकी अर्निंग होती है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम ऑफ द पीपल हैव इन्वेस्टेड इन ट्रांसपोर्टेशन. किसी ने बुग्गी खरीद रखी है, किसी ने बस खरीद रखा है. एंड आने जाने का जो है, जब यहां से सामान जाता है गांव से तो भर के जाते हैं. जैसे जैगरी गुड़, वहां शुगर केन है तो दे ऑल सेल देयर शुगर केन, उसमें रख कर लेकर जाते हैं. जब उनको फैक्ट्री में शुगर केन पहुंचाना होता तो उसमें रख कर ले जाते हैं, और वापस आते हुए खाली नहीं आते हैं. जिनकी दुकानें हैं उनके लिए सामान लेकर आते हैं. इस तरीके से दे अर्न. In this manner, they are having some non-farming activities also. Dairy. Palam, only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. यानी अगर हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को ज्यादा बढ़ाएं, अगर हम बैंक्स वहां पर लोन दें, तो हो सकता है कि वहां पर जो लोगों का स्टेटस है दैट इज इम्प्रूव्ड. डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jovar and bajra that grows during the rainy season. Two traders from Shahpur, the milk is sold in Raiganj, the nearby village. मतलब वो लोग उसको वहां पर बेचते हैं. Two traders from Shahpur, जो थोड़ा आगे है, have set up collection cum chilling center at Raiganj from where the milk is transported to faraway towns and cities. मतलब chilling center मतलब उसको आपने देखा होगा ना, वो थैली में दूध आता है उसको. मीन्स उसको चिल करके, आपने देखा होगा मदर डेयरी का पैकेट वाला दूध आता है, तो उसको चिल करके, जिससे कि दूध आपका फट ना जाए, खराब ना हो जाए. An example of, यानी कि most of the people are having the dairy farming and they sell out, क्योंकि दूध सब खरीदते हैं. So dairy is the one. अगर government is giving more importance to dairy farming, अगर उनको लोन वगैरह मिले, तो वहां पर जो है वो छोटे से डेयरी का, जैसे आपने गोपाल जी मिल्क है, आपका अमूल है, ये सब आपके डेयरी फार्मिंग में है. तो अगर डेयरी फार्मिंग होगा तो दैट कैन बी डन. एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. कुछ लोगों के पास छोटे छोटे फैक्ट्रीज हैं. नाउ ये फैक्ट्रीज वैसा नहीं है जब जैसा आप सोचो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं. इनमें जो काम होता है मिनिमम, मतलब की मशीन और मैक्सिमम लेबर्स, मिनिमम मशीन्स एंड मैक्सिमम लेबर्स.
At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing that takes place in big factories, उसके जैसा नहीं है. In Palampur, it involves simple production methods and are done on small scale. मतलब एक घर के अंदर 2 या 3 लेबर्स होंगे. एक मतलब कि घर के अंदर 2 या 3 लेबर्स होंगे. हमारे घर के पास व्हेन आई वाज लिविंग इन दिलशाद कॉलोनी, तो हमारे बिल्कुल पड़ोसी, बिल्कुल हमारे घर के जैसे सटे हुए थे, वो उनका जो था, दे वर हैविंग स्मॉल स्केल थ्रेड इंडस्ट्री, धागा. तो वो जो सर थे, मतलब जो अंकल थे, वो खुद काम करते थे, उनकी बेटी और उनकी वाइफ काम करती थी. जब बहुत अच्छा सीजन होता था तो उस वक्त में वो लोग 2-3 लेबर्स को लेते थे, बट नॉर्मली फैमिली लेबर ओनली वॉज, रेयरली आर लेबर्स हायर्ड. ये मतलब आपके जो स्मॉल स्केल होते हैं, ये वो होते हैं जैसे कि शुगर केन से जैगरी बनाना. जैगरी बनाना बड़ा आसान होता है, सो दे यूज इट. जैगरी बनाना आसान होता है, सो दे हैव स्मॉल crushing machine run on electricity. They have set up in field. The sugarcane crusher was earlier done with the help of bullocks, but now machine होता है. Then they process it into jaggery, और jaggery से they sell it out. तो ये उनके छोटे मोटे काम होते हैं. The shopkeepers of Palampur, as I told you, the third one is shopkeepers. वहां पर shopkeepers मतलब बड़े बड़े नहीं, अब लेकिन सबको जरूरत होती है. Everyone requires soap, shampoo, tea, oil, biscuit, सब जरूरत होती है. So what do they do is, ये लोग जब जैगरी को सेल आउट करने के लिए जाते हैं बुलक कार्ट में, तो ये इन शॉपकीपर्स के लिए वहां से सामान लेकर आते हैं, एंड ऑन अ स्मॉल प्रॉफिट ये लोग उसको बेचते हैं इन देयर विलेज. पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड. ट्रेड का मतलब होता है बेटा सामान लेकर बेचना, सामान लेकर बेचना. That is called as trade. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. होलसेल में क्या होता है, मान लो आपका जो है साबुन का दाम जो है, साबुन की जो कॉस्ट है, दैट इज 10 रुपीज. सो दे विल बी गेटिंग इट फॉर 6 रुपीज. सो दे कैन 4 रुपीज वो अपना प्रॉफिट रखते हैं एंड 10 रुपीज में बेचते हैं. यू विल सी small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, biscuit, soap, toothpaste, battery, candle, etc. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of space to open small shops. They sell eatables, जैसे समोसे वगैरह हो गए वैसे. Kareem has opened a computer center in the village, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं. Kareem found a number of students from village are also attending computer classes in the town. There were 2 women in the village who had a degree in computer application. तो उन्होंने उनको नौकरी भी दे दी. इससे क्या हुआ, उन 2 औरतों को नौकरी मिल गई, करीम को अच्छे टीचर्स मिल गए, और कंप्यूटर सेंटर होने की वजह से वहां के बच्चे कंप्यूटर भी सीखते हैं. He bought computers and set up class in front of their house overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. So this way they have the third non-activity. Transport, a fast developing sector. There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. Rickshaw wala, tonga wala, jeep, tractor, truck drivers, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट, बोगी, ये सब है. सो दे फेरी पीपल, मतलब लोगों को अगर गांव से शहर जाना होता है सो उनको लेकर जाते हैं. फेरी मतलब कैरी, एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड रिटर्न दे आर गेटेड पेड. द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर लास्ट सेवरल ईयर्स. ऐसा क्यों, क्योंकि हर एक को जाना पड़ता, आना पड़ता है. सो दे आर इजी, और ट्रांसपोर्ट है तो कोई ना कोई तो जाता ही है. दे हैव टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट्स इन अदर एरियाज ओनली.
Kishora is a farm labor. Kishora found it difficult to meet his family needs from the wages he received. A few years back, he took a loan from bank. This was under a government program. आपके गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री योजना वगैरह है. This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless households. He bought a buffalo. Now he sells the buffalo milk. Further, he has attached a wooden cart to his buffalo. मतलब सुबह तो दूध निकालते हैं और बाद में उसमें पीछे बुग्गी लगा दी है और यहाँ से सामान लेकर जाते हैं. Once in a week he goes to river Ganga to bring clay for the potter. Sometimes he goes with Shahpur with a load of jaggery or other commodities. Every month he gets some work in transport. यानी कि पहले वो फार्म लेबर था तो वो दूसरों के यहाँ पर काम करता था. बट नाउ बिकॉज ही गॉट चीप लोन. सबसे बड़ी जो मतलब की इंपॉर्टेंस है बेटा, दैट वी नीड चीप लोन. So because he got the cheaper loan, so now he is able to use the same buffalo. सुबह उसमें दूध निकालता है, then he is selling, मतलब कि he is using it as a transport, and thus he is able to earn more. In another way, we can conclude that, as we had seen that Palampur resembles some village in Bulandshahr, that is in UP. यानी कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो हमारे लेबर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनकी जो जिंदगी है, इट इज मोर और लेस लाइक दिस. यानी कि इफ वी वांट दैट इंडिया शुड डेवलप, वी नीड टू डेवलप आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर. हाउ? अब लैंड इज नॉट अवेलेबल, सो वी नीड टू गिव मोर लोन्स क्योंकि कैपिटल नहीं है. वेजेस लेबर्स के लिए कम है. वी नीड टू एंश्योर कि लेबर्स को प्रॉपर वेजेस मिले जिससे वो बेचारे माइग्रेट ना कर पाए. क्योंकि बेटा जब वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम देयर विलेज टू सिटीज, उससे और भी प्रॉब्लम्स आती हैं. लाइक इन सिटीज दे डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट. वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं. They live an unhygienic life. They don't have things to eat. They become unhealthy. अगर हमें इन सब चीजों को बचाना है तो we must prevent migration. The farmers should be given loans on a cheaper rate. And गांव के आसपास में भी मतलब there are some schemes in government of India. If the projects are starting, like road बिछा रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहा है, तो ऐसी जगहों पर इनको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं. देन द बैंक्स कैन गिव देम लोन लाइक किशोरा ने लिया था, उसी तरीके से किशोर ने लिया था, उस तरीके से ऐसे लोन देंगे तो वो लोग कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं वहीं आसपास में. जो चीजें वहां अवेलेबल नहीं है, दे कैन बाय एंड सेल दोज प्रोडक्ट्स. लाइक करीम हैज ओपन्ड हिज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट. सो इफ ये सब हम करें तो डेफिनेटली हमारे जो मतलब कि विलेज है, विलेजेस है, उनका जो स्टेटस है या फिर उनकी जो कंडीशन है, दैट कैन इम्प्रूव. सो दिस इज हाउ वी स्टडी दैट हाउ लैंड, लेबर और द कैपिटल आर अरेंज्ड और यूज्ड. ऑन द अदर हैंड हमारा एक इसके अंदर था फोर्थ, ह्यूमन कैपिटल. सो नाउ ह्यूमन कैपिटल मतलब व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, यानी कि हम इंसान. तो जो आपका सेकेंड वाला चैप्टर है, दैट इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, पीपल एज रिसोर्स, आप उसमें पढ़ोगे दैट हमारी जरूरत कितनी ज्यादा है. द पीपल हु आर एम्प्लॉयड. तो कौन होता है जो एम्प्लॉयड होता है, कौन अनएम्प्लॉयड होता है. What happens if they don't get education? What happens if they don't get health? तो people, human capital को हम कैसे बढ़ा सकते हैं. Like मैंने आपको बताया,
फिजिकल कैपिटल को हम बढ़ा सकते हैं बाय Ma'am, गिविंग. if they are not healthy or they are uneducated, then they are considered as liabilities. Yes, they become liabilities because they don't have any other source of income. And when you are not having source of income, if you are dependent on others, you become liability. Yes, ma'am. So that is, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि लैंड को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, बट विद द सेम लैंड यूजिंग द मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वी कैन इंप्रूव द प्रोडक्शन. लेबर्स के लिए वी नीड मोर एम्प्लॉयमेंट. फॉर द कैपिटल हमने देखा, अभी हम 10th में पढ़ेंगे, देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज कॉल्ड एज मनी एंड क्रेडिट. वी विल अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द landless farmers, they are dependent on money lenders, on the informal sectors, जिसकी वजह से sometimes they even commit suicide. So it is very important कि हमारा जो capital sector है वो हमारा improve हो जाए. Last but not the least, if the government is giving importance to non-farming activities, क्योंकि आने वाले टाइम में फार्मिंग के साथ नॉन फार्मिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, then also their conditions can improve. So we have understood that for improving the economy of a country, we have to work on many areas. कि आप चाहे you are in a business, you are in, मतलब कि you are having your own farming, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. So when we have to improve them, how we improve? What are the means? So through the story of Palampur, हमें थोड़ा फेयर आइडिया हुआ कि इंडिया में मैक्सिमम फार्मर्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि हमने देखा आउट ऑफ 450 फैमिलीज 150 फैमिलीज आर दलित्स. आउट ऑफ दैट 300 आपके मैक्स, मतलब कि जो मैक्सिमम पीपल है 240, दे आर ऑल मीडियम. ओनली 60 पीपल आर रिच. यानी कि रिच और पुअर के बीच में कितना डिफरेंस है? 60 आर रिच and 150 are poor. यानी poor ज़्यादा और rich कम है. So this is what we study in economics and the story of Palampur. With this chapter is completed.